Vijay Enterprises Limited issues 2009% debentures of 100 each. So you are asked to give journal entries on the issue if. Now we have a company name as Vijay Enterprises Limited. Now they are issuing the 2000K debentures. And what is the value of one debenture? One debenture is costing rupees 100 each. Now on this basis, they are asking us to give the journal entries on the following things. Now, अब ये हमें क्या बता रहे कि when the debentures are issued at the par and redeemed at the par, तो हमें ये journal entry देनी है कि जब debentures issue भी हो रहा है par पर और redeem भी हो रहा है par. So what we will do? We will simultaneously read it and we will pass the entry. तो दोनों साथ साथ में हो जाएगा. So for that purpose, just prepare a journal का format first. Prepare a format of journal, serial number, particulars, debit rupees, credit rupees. Give the heading Journal of Vijay Enterprises Limited. Let's start with the first entry. Now C class. Issue हो रहा है तो सबसे पहले तो what this debenture holders do, this debenture holders give the application first for buying up the debentures. So पहले तो हम किसकी एंट्री करते हैं? एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं. So what is the entry for the same? Bank account debit, क्योंकि application money also you will be receiving it up. So bank account debit to debenture application account. I've just written it down in the short. Now फिर जब आप इश्यू कर दोगे डिबेंचर्स को, ठीक है, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, बिकॉज आप एंट्री तो सेम अमाउंट से पास करोगे, सो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट विल गेट कट. तो अब बेसिकली क्या बचा? बैंक अकाउंट. यहां पर क्या बचा? बैंक अकाउंट टू व्हाट? डिबेंचर्स अकाउंट. So that is why when it has been issued at a par and redeem at the par, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. Now we have a percentage of the debentures which is given in this sum. So bank account debit to 9% debentures account. And we have to pass this with a nominal value. What is a nominal value? 2000 into 100 करेंगे तो 2 lakh के debentures will be there. So you have to pass the entry with a 2 lakh. So pass the entry with a 2 lakh and write down the narration being 2009% debentures of rupees 100 each issued at redeemed at par. Issued and redeemed at par. Now, next is when it is issued at a discount of 5% but redeem at the par. अब जब भी डिस्काउंट इश्यू डिबेंचर्स इश्यू होंगे डिस्काउंट पर एंड रिडीम होंगे पार पर, तो दैट डिस्काउंट इज अ लॉस. डिस्काउंट क्या है? लॉस है. उतना कंपनी को पैसा कम मिलेगा. सो दिस इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी. सो लॉस ऑलवेज इट विल बी डेबिटेड. तो पहले तो उसके लिए भी हमें कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी? वी नीड टू फाइंड पास द जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप एप्लीकेशन भी दोगे तो डिस्काउंट के साथ ही वो डिस्काउंटेड पैसा दोगे एप्लीकेशन में भी. Okay, and when it will be issued, what will be the entry? Debentures application account debit, discount on issue of debentures account debit to debentures account. अब देखो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट इट विल गेट कट. तो क्या बचेगा? बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. तो बन गई हमारी एंट्री. देखो बैंक इश्यू एंड टू डिस्काउंट टू डिबेंचर. सो बैंक अकाउंट डेबिट discount on issue of debentures account debit to 9% debentures account.
नाउ डिबेंचर्स कितने के थे? 2 लाख रुपीज के। एंड व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट हमें 5% मिलना है। सो 2 लाख का 5% कम्स टू हाउ मच? 10,000। तो हमें बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा? 1,90,000. So pass the entry with 1,90,000 and write the narration being debentures issued at a discount and redeemed at a par. Now the third one. When it is issued at a premium of 5% but redeemed at the par. Okay. Now, जब भी हम issue करेंगे debentures को, तो that premium will be what? That will be our profit. Correct? So पहले तो हम application देंगे. So bank account debit to debenture application account because it is a issue. फिर डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ हमें वो प्रीमियम का अमाउंट भी क्या करना है? पे करना है. तो अपने लिए फॉर द कंपनी व्हाट इट इज अ प्रॉफिट. सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, or you can write down security premium account debit to debentures account. Again डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट कट हो जाएगा. सो क्या बचेगी? तो फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट premium security premium account debit to debentures account. So just pass the entry. Bank to 9% debentures to security premium. अब देखो कितना परसेंट है प्रीमियम? 5% का प्रीमियम इज बिन गिवन. करेक्ट? सो 2 लाख का 5% कम्स टू 10,000 rupees. So write down 10,000 in front of security premium. तो टोटल अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 2 लाख प्लस 10,000. सो 2,10,000. Now next, when it is issued at a discount of 10%, a class, write down the narration as well. Being 2009% of debentures issued at a premium of 5% and redeemed at par. Even you can write redeem के बदले payable also you can write down. Payable at par. Now next, then they are issued at a discount of 10% but redeemable at a premium of 5%. Discount 10% है. So discount तो मिल रहा है इश्यू पर, बट जब रिडीम करेंगे तब कितने पे रिडीम करेंगे? 5% ऑफ प्रीमियम पर. सो देखो पहले हम इश्यू की एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब डिस्काउंट है तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे तो अपने लिए एज अ कंपनी इट इज अ लॉस. सो जब हम इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर हमारे लिए क्या है? दिस इज अ gain for the company. So to premium on redemption. To premium on redemption. So again the same debenture application debit debenture application credit को कट कर दो. तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी? यहाँ पर बैंक अकाउंट है. सो बैंक अकाउंट डेबिट discount on issue account debit to debentures account, and here we have a 9% debentures. So to 9% debentures account to security premium account. Now rather than writing down security premium, this ये जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो रिडम्पशन के टाइम पर पे कर रहे हैं ना. सो राइट इट डाउन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. Redemption.
Now debentures कितने के थे? 2 लाख के. So we will be writing down 2 lakh in front of debentures. 5% का प्रीमियम था. So 2 lakh का 5% comes to how much? 10,000. So we will be writing down 10,000 in the front of premium on redemption. अब एक तो देखो डिस्काउंट पर हमने इश्यू किया था तो 20,000 का डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट था ना. सो 2 लाख का 10% कम्स टू हाउ मच? 10,000, सॉरी 20,000. तो 20,000 प्लस ये प्रीमियम भी तो मुझे पे करना पड़ रहा है 10,000 का. सो टोटल मेरा 30,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. सो दैट लॉस विल बी डेबिटेड. सो लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 30,000. सो देखो क्रेडिट साइड में वी हैव 2,10,000, डेबिट साइड में वी हैव 30,000. सो 2,10,000 माइनस 30,000, तो अभी हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव होगा? 1,80,000. सो पास द एंट्री विथ 1,80,000. Now next one, when it is issued at a par but redeemable at 10% of premium. अब इश्यू तो कर रहे हैं पार पर, बट रिडीम जब कर रहे हैं तब रिडीम किसके ऊपर कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पर कर रहे हैं. नाउ सी अगेन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, करेक्ट. अब जब इश्यू करेंगे साथ में रिडम्पशन करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें लॉस हुआ ना, प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 10% का तो एक्स्ट्रा. टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट. सो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट गॉट काटेड, तो क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% ऑफ डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. अब देखो कितने का प्रीमियम है? 10% का प्रीमियम है. सो 2 लाख का 10% कम्स टू हाउ मच? 20,000, करेक्ट. सो यहां पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 2,20,000. नाउ प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, दैट इज अ लॉस. सो 20,000 का हमें लॉस हो रहा है बिकॉज इट इज इशूड एट अ पार ओनली. सो यही जितना प्रीमियम है वही हमें इतना लॉस हो रहा है. एंड अभी कितना बैंक अकाउंट पे कितना आ रहा है हमें? ऑब्वियसली यहाँ पर 2,20,000 है एंड हियर वी हैव अ 20 का लॉस. सो 2,20,000 माइनस 20,000, it will give you 2 lakh. So bank account में we are going to get 2 lakh rupees. So being debentures issued at a par, issue तो हुआ par पर, but it got redeemed at the premium. So with this we are done with our sum. Just check it out, the whole of the sum once. So here for your, this is just for your understanding, you do not have to write down in the exam. पर ये entries कैसे आई ना, बस मैंने सिर्फ आपको वो बताया है. And how this 30,000 came, I have just written it down over here. 20,000 का discount plus 10,000 का premium. Okay, so it's done now. If anyone is facing any of the doubt, then just acknowledge in the chat box.